صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت جلد ایران میں فتح ملنے کا دعویٰ کر دیا۔ ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگس میں تقریب سے خطاب میں کہا، ایران بہت پیارا ملک ہے، ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، جوہری پروگرام کی وجہ سے ایران کے ساتھ جنگ کرنا پڑی۔ ایران جنگ بہت جلد ختم ہونی چاہیے اور یہ جنگ اچھے طریقے سے ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایران سے جنگ 2 ماہ میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ معیشت میں رکاوٹ ایران ہی کی وجہ سے آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب میں ایران کو ذہین ملک اور لوگوں کو فائٹر قرار دے دیا۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جا سکتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران نے تقریباً تمام چیزوں پر اتفاق کر لیا۔ پاکستان جنگ بندی میں بہت عمدہ رہا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم زبردست شخصیات ہیں۔ ایران کے ساتھ اگلی ملاقات ہفتے کے آخر میں ہو سکتی ہے۔ ایران سے مذاکرات میں کافی پیش رفت بھی ہوئی۔ اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی تو دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کی انطالیہ میں ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ملاقات میں موجود۔ وزیر خارجہ حقان فیدان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا، ترک صدر انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیر اعظم سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان ترکیہ دورے پر اظہار مسرت کیا۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایک اور قدم، لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے لبنان اسرائیل عارضی جنگ بندی کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا، میری لبنانی صدر وزیر اعظم نیتنیاہو سے بہترین گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے آپس میں 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ جنگ بندی آج سے شروع ہو کر اگلے 10 روز کے لیے ہوگی۔ دونوں ممالک کے رہنما 34 سال بعد واشنگٹن میں موروکو ریبیو سے ملے۔ میں نے جے ڈی وینس سے موروکو ریبیو کو اسرائیل اور لبنان کے ساتھ مل کر کام کی ہدایت کی۔ میں نے پاکستان آبنائے ہارموز میں معمول کی بحری نقل و حرکت کی بحالی کا مطالبہ کرتا ہے۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کی صورتحال پر پاکستان کا واضح اور دو ٹوک موقف ہے۔ تنازع نے نہ صرف خطے بلکہ اس سے باہر بھی سب کو متاثر کیا۔ تنازع کی ابتدا ہی سے پاکستان نے مذاکرات کی بحالی کو ترجیح دی۔ پاکستان نے کشیدگی میں کمی، جنگ بندی کو ترجیح دی۔ پاکستان نے 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد مذاکرات کی کامیاب میزبانی کی۔ مذاکرات پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے مشرق وسطی میں مستقل قائم امن کا مشن جاری۔ وزیر اعظم کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ اور امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے قطر اور دیگر ممالک پر حملوں کی مذمت۔ عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا کہ قطر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا قطر آمد پر شاندار استقبال۔ قطری فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے وزیر اعظم کے جہاز کو حفاظتی حصار میں لیا۔ شہباز شریف نے قطری قیادت اور پائلٹس کا شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ لڑاکا طیاروں نے وزیر اعظم کے طیارے کو حصار کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا وفد ہمراہ ایران کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف سے تہران میں ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مذاکرات پر بات چیت ہوئی۔ گزشتہ روز فیلڈ مارشل کی ایرانی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایرانی حکام کا پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر 12 سال سے کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ ایران پر خصوصی نغمہ بھی جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران پر گرم جوشی کا اظہار۔ ایران کی جانب سے فیلڈ مارشل کو زبردست خراج تحسین۔
वज़ीर दिफा पेट हेग्ज़ेट मुस्तकिल डील न करने की सूरत ईरान को दोबारा जंग की धमकी। अमेरिकी वज़ीर दिफा की डील न करने की सूरत में धमकी, कहते हैं अगर ईरान ने मुआहिदा न किया तो दोबारा जंग के लिए तैयार हो जाए। अमेरिकी मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। ईरान ना बनाए हॉर्मुज़ खोल दे वरना ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी नाकाबंदी जारी है, जब तक चाहे रख सकते हैं। ईरान के लिए पैगाम है कि हम आप पर नजर रखे हुए हैं, हमें मालूम है कि ईरान कौन से फौरी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की भी ईरान को धमकी, कहा अमेरिकी फौज किसी भी लम्हे एक इशारे पर दोबारा कार्रवाई का आगाज कर सकती है। हम मुकम्मल तैयार हैं, ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करें। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी सफ़ीर तामीरी का पैगाम जारी, कहते हैं अमेरिका काबिल भरोसा मुल्क नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान अचानक हमले किए, सिफारती अमल मुतासिर हुआ। ईरान खित्ते में बालादस्ती नहीं, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। हमने 47 बरस से अमेरिका और सहूरी क़ुव्वतों का दबाव बर्दाश्त किया, हमारी जौहरी प्रोग्राम गुलाम नहीं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूड ने तस्दीक करते बताया कि ईरान के साथ बातचीत नतीजा खेज रही। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। ईरान अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। जंगबंदी माहिदे में तौसीक की खबरें गलत हैं। अमेरिकी वक्त की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुशनर से। Chief of the Defence Forces and Chief of Army Staff, Field Marshal Syed Asim Munir, Pakistan has maintained open channels of communication with the concerned parties as part of our facilitative and mediatory role. As part of these ongoing efforts, the Prime Minister is currently undertaking visits to key regional countries, while the Chief of Defence Forces and the Chief of Army Staff arrived in Tehran yesterday. पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका की जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भरपूर किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और उनकी टीम आमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशा रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 3 मुल्कों के दौरे पर। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, अमेरिका का समंदर से ईरानी तिजारत रोकने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, एक भी ईरानी जहाज आबनाए हॉर्मुज़ से नहीं गुजर सका। ईरानी फौजदारान इनकलाब ने कहा, नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंकर आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरा। खुराक ले जाने वाला बहरी जहाज भी इमाम खोमैनी बंदरगाह की जानिब आया। ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी फौज ने मुनासिब जवाब देने की धमकी भी दे दी। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के माबैन इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म। दिफा के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा तवानाई बहरान की सूरत पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम किए। ईरान अमेरिका जंग की वजह से कशीदा सूरत हाल थी, इस वजह से दुनिया भर में तवानाई सप्लाई चेन मुतासिर थी। मुल्क में गैस और पेट्रोल की सप्लाई चेन बहाल रखने के लिए पाकिस्तान इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब के डिपॉजिट मौसूल से स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब के $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल हो गए। सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तौसी दे दी। ये तौसी अब सालाना बुनियादों पर रूल ओवर की पाबंद न होगी। सऊदी डिपॉजिट की वजह से ज़र मुबादला दफ़ाइल को मजबूत बनाने और बैरूनी खातों को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, मईशत बेहतर बनेगी।
मुल्क भर में बिजली बहरान शदीद हो गया। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग की वजह आलमी तवानाई बहरान है। गैस न आने की वजह से पावर प्लांट्स नहीं चल रहे। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट है, इसलिए 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अवैस लगानी के दिन के औकात में लोड शेडिंग की तरजीब। कहाँ प्रोपेगेंडा हो रहा है, दिन में लोड शेडिंग नहीं हो रही। पाक बहरिया का शुमाली बहीरा अरब एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने तेज रफ्तारी से कामयाबी के साथ हदफ को निशाना बनाया। तमाम तर सूरत हाल न्यूयॉर्क चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। मिसाइल खतरात से बचने, हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी की जंगी तैयारियों का मजहर करार। मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाक बहरिया की तकनीकी बरतरीन अमली महारत का आकाश। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर नेवल यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चीफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर सर्विसेज चीफ्स की जानिब से भी कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद दी गई। अवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहमी का मिशन। पाकिस्तान रेलवेज और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा पाकिस्तान रेलवेज को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट और तालीम के शोबे में नुमायां इक़दाम किए। नए ट्रैक्स बिछाने के अलावा रेलवे ट्रैक्स की हालत को भी बेहतर किया जा रहा है। वज़ीर सिंध ने 105 पार्टनर तंजीमों और NGOs में 800 मिलियन के फंड्स तकसीम कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा हमारा पुख्ता यकीन है कि माजूरी किसी सूरत माजूरी नहीं, माजूर अफराद की तरक्की में हायल रुकावटों को दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। ख़ुसूसी अफराद की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। मौके मिलने पर माजूर अफराद मुआशरे और मईशत में बामायनी हिस्सा डाल सकते हैं। सिंध हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए कोशिश करेगी। रावलाकोट पुलिस की कार्रवाई। रॉ के लिए काम करने वाला इरफान नामी कारिंदा गिरफ्तार। IG आज़ाद कश्मीर ने रॉ के एजेंट के पकड़े गए मवाद मीडिया के सामने पेश कर दिए। IG लियाकत अली मालिक ने कहा रॉ एजेंट इरफान हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा था। मुल्क दुश्मन से मालूमात को दुश्मन तक पहुँचा रहे थे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन का तक़द्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट इरफान ने एतराफ़ी बयान में कहा जून 2025 में शाहिद नामी शख्स ने सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। शाहिद ने मुझे गुजरावाला के मुख्तलिफ मकामात की वीडियो बनाकर भेजने का टास्क दिया। और मुल्क में गर्मी में कमी आने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, गोनेर, मालाकंड, शागना, कोहिस्तान, बाजौर, मोहम्मद खैबर में बारिश का इम्कान। और ज़ईकुरम, वज़ीरिस्तान, बडगराम, तूरगढ़, मानसहरा, बदाबाद, हरीपुर में भी बारिश में तवक्के। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसदा, सोआबी, कोहाट, हंगू, कर्ट और बन्नू में भी बारिश होगी।